Hello students, welcome again. Today we are starting chapter number 2 from your history section, Nationalism in India. So let's start with this chapter in which we are going to learn so many interesting things about the Indian freedoms and how they get the freedom, what is the meaning of nationalism, and what is the role of Mahatma Gandhi. So students, there is a slide which I prepare for you. First about the nationalism definition. So according to your NCRT book, I am explaining all things. Um, that is nationalism in India. This is your chapter number 2. As you have seen, the modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of the nation state. Now, what is the meaning of nation state? Nation state which is identify द पर्टिकुलर नेम, जैसे किसी कंट्री का नाम होता है इंडिया, जर्मनी, फ्रांस. सो दीज आर नोन एज द नेशन states. Fine. So about the nation state, it also meant a change in the people's understanding of who they were, कि वो कौन है, what the determines their identity, उनकी identity क्या है, and the sense of belonging, कि वो किस इस area से belong करते हैं. It's all known as the nation state. New symbols and icons, new songs and ideas for chairs, new links and the uh, redefined to the boundaries of the communities. It most countries are making of this new nationalism identity was long process. How did the consonants emerge in India? Now, in your book, chapter number 1, nationalism in Europe. Fine. So, in this chapter, uh, we will discuss how the nation state was starting forming, जो भी nationalism का idea which was started from Europe, and after the Europe it rise in India. So French revolutions we have discussed earlier in the ninth class. So the chapter number 1 and 2 is interconnecting, ये दोनों चैप्टर जो है इंटरलिंक्ड है. आई एम स्टार्टिंग विद द नेशनलिज्म इंडिया जस्ट बिकॉज it is very easy for you. Now next paragraph of this chapter is in India as in many other colonies. So India was the colony of the Britain. You all know in 8th class we have discussed this thing. The growth of the modern nationalism in the intimately connected to the anti-colonial movement. जो भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत होड़ थी कि वो ऐसी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज़ बना रही थी जिससे उन्हें ट्रेड के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा क्या बनने वाला था, बेनिफिट. People began to discovering their unity in the process of their struggle with the colonialism. अब वहाँ के लोग जहाँ पर कॉलोनियल रूल था, वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगे. और स्ट्रगल इज़ द वे विथ कनेक्टिंग टूगेदर, जिस उस स्ट्रगल के कारण ही वो लोग एक दूसरे से क्या हो पाए, कनेक्ट हो पाए. द सेंस ऑफ बिलोंगिंग oppressed under the colonialism provide a shared bond that tied many different groups together. और सिर्फ इन्हीं ऑप्रेसिव जो नेचर था, डोमिनेट जो नेचर था कॉलोनिज्म का, उन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप है उन्हें टाइट कर दिया, ने एक जोड़ दिया एक दूसरे के साथ, वो क्या हो गए, कनेक्ट हो गए. नेक्स्ट इज बट ईच क्लास एंड ग्रुप्स फेल द इफ़ेक्ट्स ऑफ द कॉलोनिज्म डिफरेंटली. लेकिन हर क्लास और हर ग्रुप के साथ जो इफ़ेक्ट था कॉलोनिज्म का, इट वॉज डिफरेंट. देयर एक्सपीरियंस वर वेराइड, उनके एक्सपीरियंस भी अलग थे. एंड देयर नोशंस ऑफ द फ्रीडम्स वर नॉट ऑलवेज इन द सेम. उनका जो मेन एम था, जो फ्रीडम स्ट्रगल में दे पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. So it was also different. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement. Now there is the important role of Mahatma Gandhi. यहाँ पर जो लीडरशिप की
इनको कनेक्ट करने की, इट वॉज डन बाय द महात्मा गांधी विद वन मूवमेंट, एक मूवमेंट किया उन्होंने, बट द यूनाइटेड डिड नॉट इमर्ज विदाउट द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये भी जो यूनाइट हुई या जो एक हुआ उसमें भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। In an earlier textbooks, you have read about the growth of the nationalism in India up to the first decades of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and the study the non-corporation civil disobedience movement. Now we are starting our chapter 1920. Fine. We will explore how the Congress sought to develop the nation movement. किस तरह से कांग्रेस ने मूवमेंट किया इसका. How the different social people participate in this movement, किस तरह से उन्होंने participate किया. How the nationalism capture the imaginations of the people, किस तरह से उसे imagine किया गया. So there is a picture given in your book. Mass processions of the street becomes the common features during the national movement. यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पे दे रखा है. जो प्रोसेशन का मतलब होता है यहाँ पे जो जुलूस निकाला जाता है. देखिए यहाँ पर कि ये कॉमन चीज़ थी किसकी, नेशनलिज्म. जो भी प्रोटेस्ट हुआ, स्ट्रगल हुआ, तो ये कुछ कॉमन थिंग्स थी जो हो रही थी. Now next topic, first topic of your chapter is the First World War, Khilafat and non-corporation movement. Fine students, so listen carefully. This is very important part. In year after 1919, now we are starting at with which date, 1919. We see the national movement spreading the new areas, incorporating new social groups and developing new models of the struggle. How do we understand these development? What what is the implications did they have? अब जो भी ये changes हो रहे थे, social groups connect हो रहे थे, how they did. So about it, first of all, the war created a new economic and political situation. This is a long question answers. Many times is asked in the board exams also. पर सबसे पहले जो situation create हुई after the first war. So first world war was fought between the 1914 to 1918. Fine. So between this group after 1918, the first world war stopped. India is a part of the first world war directly and indirectly just because he was under of the British. He was. It's 6:11 p.m. Note. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो किसकी तरफ से फॉट कर रहा था, ब्रिटेन की तरफ से. सो देर इज सो मैनी थिंग्स. न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन, इट लीड्स टू यूज इंक्रीज ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर्स विच वाज फाइनेंस बाय द वॉर लोन. अब क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स खर्चे बढ़ गए थे डिफेंस के, और जिसके कारण क्या हुआ, क्योंकि उन्हें बहुत सारा लोन लेना पड़ रहा था वॉर के लिए, इंक्रीजिंग टैक्स, और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिए. कस्टम ड्यूटीज़ वर राइज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, इनकम टैक्स. और कस्टम ड्यूटी मीन्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है कंट्रीज़ में, कुछ चीज़ें बाहर जाती है कंट्रीज से और कुछ चीज़ें वहाँ से आती है, तो उस पर जो टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई. इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया. थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज, जो वॉर चला उसके ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ों की जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो गई, टैक्सेस के इंक्रीज. डबलिंग बिटवीन द 1913 टू 1918, यानी डबल हो गई 1930 से 1918. फाइन. देन लीडिंग ऑफ द एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ द इकोनॉमिक पीपल, बहुत मुश्किल हो गया लोगों का सर्वाइव करना. विलेजर्स वर कॉल अपॉन टू द सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट. अब जो विलेजर्स हैं उन्हें बहुत फोर्स रिक्रूटमेंट्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती उन्हें आर्मी में ले जाया गया, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स की ज़रूरत थी. इन रूरल एरिया कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर, जिसके कारण लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस चीज़ को लेकर. देन 1918 to 1919 and 1920 to 21,
क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन हुई और ज़्यादा वर्स्ट हो गई, क्योंकि इसी के बीच में क्रॉप फेलियर यानी नेचर ने भी साथ नहीं दिया, क्रॉप फेलियर्स होगी, बहुत सारे जगहों पर क्रॉप्स जो है वो अच्छे से नहीं हुई। विलेजर्स दिस वॉज द कंपाइंड बाय द इन्फ्लुएंस एपिडमिक। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंजा इस एपिडमिक एक बहुत सारी जो डिजीज़ है, ये एक लाइन यहाँ पर मिस हो गई है, क्रॉप फेलियर्स मैनी पार्ट ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसके कारण क्या हो गई, फूड की शॉर्टेज हो गई फूड की। दिस वाज द कंपाइंड बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडमिक। एपिडमिक्स इज जो है सिचुएशन होती है, जैसे अभी कोरोना है ना, पेडमिक है, पूरे वर्ल्ड वाइड होती है। पेडमिक में किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत तेज़ी से जो बीमारी फैलती है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people the perished as a result of famine and the epidemic, यानी 13 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए और वो मर गए फूड शॉर्टेज के कारण और इस एपिडेमिक के कारण। सो सिचुएशन वाज वेरी वर्स। सो दीज ऑल सिचुएशंस वाज द causes of this nationalism movement. People hoped that their hardship would end after the war over, but that did not happen. लोगों को ऐसा लग रहा था ये जो उनकी हार्डशिप है, जो उनकी परेशानी है, कठिनाई है, डिफ़िकल्टीज वॉज वॉट एंड हो जाएगी जब वॉर एंड होगा, बट इट्स नॉट हैपन। वो सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती गई। एट द स्टेज ऑफ न्यू लीडर appears and the suggest a new mode of struggle, और इन्हीं सारे स्ट्रगल्स ने जो लोग फेस कर रहे थे, उन्होंने एक नए स्ट्रगल को क्रिएट किया। नाउ फर्स्ट इज़ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह है कि सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह का मतलब क्या था, कौन इसे लेकर आया। अबाउट दिस महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। 1915 जो है उससे पहले 20 ईयर्स के बाद वो इंडिया आए थे। साउथ अफ्रीका में वो थे महात्मा गांधी, और 1915 में वो कहाँ पर आए, इंडिया में, और उनके इंडिया में आने के साथ ही ये जो मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हुए। सत्याग्रह ही वाज इंट्रोड्यूस इन द साउथ अफ्रीका आल्सो। सो एज यू नो that he had come from South Africa, where he had successfully fought the racist regimes with the novel methods of the mass agitations. वहाँ पर रेसिस्ट जो था, अपार्थिड पॉलिसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अपार्थिड पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में जो था, तो सक्सेसफुली एक बड़ा स्ट्रगल वो वहाँ पर कर चुके थे, विच इज कॉल्ड द सत्याग्रह, जिसको क्या नाम दिया गया, सत्याग्रह। The ideas of सत्याग्रह emphasizes the power of truth and need to the search of truth. इसने किसको एम्फेसिस किया, जोर दिया कि ट्रुथ में पावर होती है, अगर आप ट्रुथ का साथ देते, सच का साथ देते, तो आपको किसी ताकत की या किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। इट सजेस्ट दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर उनका जो कॉज ट्रू है, इफ़ द स्ट्रगल वाज द अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर उनका स्ट्रगल किसी इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वर नॉट नेसेसरी, तो उसके लिए फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है टू फाइट द ऑप्रेसर्स, उस ऑप्रेसर्स से फाइट करने के लिए। विदाउट सीकिंग द वेंजनेस ऑफ द बीइंग अग्रेसिव, बिना अग्रेसिव हुए सत्याग्रह कुड विन द बैटल ऑफ थॉट नॉन वायलेंस, ये युद्ध जीता जा सकता है बिना किसी नॉन वायलेंस, यानी कि कोई भी वायलेंस किए बिना ये हम जीत कर सकते हैं। दिस कुड बी डन बाय द अपीलिंग द conscience of the oppressors. People, including the oppressors, had to be persuaded to see the truth, insist of being forced accept to the through the to see the truth and insist of belonging forced accept the truth belonging to the violence. By the struggles, truth was bound to the ultimately triumph. और अंत में किसकी जीत होगी, सच की जीत होगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्मा ऑफ द नॉन वायलेंस कुड द यूनाइटेड ऑल इंडियंस, और सभी के लिए क्या है, नॉन वायलेंस असेंशियल है। फाइन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पैराग्राफ इज
While the Rolect Satyagraha had been widespread movement which was still limited mostly cities and town. जो रॉलेक्ट एक्ट था ना, रॉलेक्ट एक्ट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. इट वाज द एक्ट पास्ड बाय द 1919 बाय द impartial legislative council. What was this act? Under this Rolect Act, the enormous power had to award it to the governments to the suppress the political activities. It also allowed to the detentions of the political prisoners without trial for the 2 years, arrest Indian political leaders on the basis of doubt. So there is Rolect Act was the mediums which the confiscated the freedom and liberty of the Indians. So about this, but this was the limit in the town and city. Mahatma Gandhi not felt to need of the launch more broad-based movement in India, but was certain that no such movements could be organized without the being of the Hindu and Muslims क्लोज टुगेदर. उनका ऐसा मानना था जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो जाते तब तक किसी भी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता. ऑन द वे ऑफ डूइंग ही फेल द टेक द खिलाफत इश्यूज. उन्होंने खिलाफत इश्यूज को यहाँ पर लिया. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ended with the defeat of the Ottoman Turkey. Now फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन जो टर्की था डिफीट हुआ, ब्रिटेन ने उसे डिफीट किया. एंड देयर वर द रूमर्स दैट द हार्श पीस ऑफ ट्रीटी was going to be imposed on the Ottoman एम्पर. और ये माना गया कि जो ट्रीटी की गई, संधि की गई किसके साथ, ओटोमन के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, हार्श थी. ये रूमर्स थी. The treaty was going to impose the Ottoman Empire, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. और इस्लामिक वर्ल्ड का जो हेड था जिसे क्या कहा जाता था, खलीफा. टू डिफाइन द खलीफत temporal powers to खिलाफत कमेटी was formed in the Bombay इन द मार्च 1919. और उसी को क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, खिलाफत कमेटी, बॉम्बे में 1919 में. यंग जनरेशन of the Muslims leaders like the brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing the Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action of the issues. Now they have supported to the Mahatma Gandhi क्योंकि उनका भी अपना इशू था ब्रिटिशर्स को लेकर. गांधी जी saw that it was the opportunity to bring Muslims under the umbrella of the unified nation movement. अब गांधी जी को यही दिखा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक ही अम्ब्रेला, एक ही स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर में हिंदू मुस्लिम्स एक साथ किसके साथ फाइट करेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ. एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस सितंबर 1920 he convicted other leaders to need of start non-corporation movement support to the khilafat as well as for the Swaraj. Now they started the non-corporation and khilafat movement together. Both aims was similar. They supported, it was the first movement which represent the unity of the Hindu and Muslim. So it's all about today. Next we will discuss about the what was the Rolect Act, इसको हम डिटेल में करेंगे. What was the non corporations, what was the result, all thing we will discuss in the next lecture. Thank you and have a nice day.